IIC to formally welcome Balkrishna ji. Archana Pandey ma'am. Thank you, Dr. Gyan Prakash ji. Good afternoon, respected Mr. Balkrishna ji and my dear faculty members, students and research scholars. I welcome you all in this event of Institute Innovation Cell today. Heartiest welcome to Mr. Balkrishna ji, who is the eminent speaker today. It is an honor to be graced by the presence of such an accomplished editor of an international magazine. I am highly obliged that Mr. Balkrishna ji accepted our invitation to share his knowledge and experience with our students and faculty. On behalf of our college and IIC, I welcome you, sir, and I am sure that you will motivate young minds of our college. Now I invite Dr. Gyan Prakash ji for further conducting the program. Thank you, ma'am. Now, a brief introduction of Balkrishna ji. So, Balkrishna ji is the editor and co-founder of internationally acclaimed monthly magazine Coordinate, specializing in positioning and navigation techniques. The magazine is launched in 2005. The magazine has wide circulation across different continents: Asia, Australia, New Zealand, Europe, and North America. The total print circulation is about 11,000, and e-Zen is about 35,000 professionals are attached with this magazine. Mr. Krishna has obtained his BSc degree in Physics, Chemistry, and Maths in 1989 from Allahabad University, and MSc in Applied Geology in 1991, again from University of Allahabad, and MPhil in Environmental Science from JNU, New Delhi in 1995. After working for 3 years in different organizations, finally in 1999, he joined GIS Development as assistant editor. And after having a 6 experience of technical journalism, he co-founded Coordinates magazine in 2005. And from that time, he is publishing this magazine for over more than 20 years. Mr. Krishna is a regular speaker at national and international forums on geomatics, and he visited more than 30 countries to deliver his talk. He has worked as a consultant for a World Bank project also. He has authored a book named National Spatial Data Infrastructure and SDI in India through the years. This is the brief introduction of Balkrishna ji, but I'm happy to inform that he is my classmate from class 6th, and there is some यादें हैं उनके साथ, जैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वेरीड, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करने को। तो एक पहला छोटा सा इंसिडेंस ये है कि हम लोग 11th या 12th में होंगे, तो चूंकि GIC इलाहाबाद का था, हिंदी मीडियम था, तो हम लोगों ने इंग्लिश को एक अपोजिशन करने के लिए कि इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस न दिया जाए, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखना चाहा। और आर्टिकल, अगर इंग्लिश का आर्टिकल विरोध हिंदी में लिखा जाता तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो हमने और इन्होंने मिलकर एक आर्टिकल लिखा इंग्लिश में अगेंस्ट द इंग्लिश। इट वाज ईयर 1983-84, और उसके लिए हम लोगों ने मेहनत इतनी की कि हम लोगों ने ब्लिट्ज मैगजीन वीकली, रूसी करेंजिया साहब उसके ऑडिटर थे, इलस्ट्रेटेड वीकली प्रतीश नंदी एंड वेरी रिनाउंड एडिटर्स रहे उसके, एंड रीडर डाइजेस्ट, ये सब पढ़ के जो मोस्ट डिफिकल्ट सब वर्ड्स रहे उसको नोट किया, और उसकी हेल्प से एक इंग्लिश के अगेंस्ट इंग्लिश में लिटरेचर लिखा, एक आर्टिकल लिखा, और लेके उसको उस समय के जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका इलाहाबाद का बड़ा अच्छा इंग्लिश डेली था, उसके पास गए, एडिटर से मिला कि साहब ये हम लोग आर्टिकल अपना छपवाना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा बच्चे आए हैं 11th क्लास के, इनको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, जेब खर्च, तो उसने कहा पैसे ऑफर किया कि ये पैसे आप रख लीजिए और इसको मैं देख लूँगा। तो हमने कहा नहीं, पैसे नहीं चाहिए, हम ये आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल पढ़ा और कहा साहब आर्टिकल तो बेटा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता। तो हमने कहा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहे मेरा बिजनेस खराब करोगे, इंग्लिश का डेली
और इंग्लिश के अगेंस्ट आप आर्टिकल लिख के आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं इसको रखता तो अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा। मेरा इंसिडेंट बताने का ये मतलब कि जो रूटीन है उसके अगेंस्ट चल के सोचने की जो आदत है, जो एक जुनून है, वो बालकृष्ण में शुरू से ही रहा, जो 1983-84 की घटना है। और बाकी तो बालकृष्ण जी आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं आजकल और क्या इनके करने के और उम्मीद क्या कर रहे हैं ये। तो नाउ आई इनवाइट बालकृष्ण जी to address our students and give them some inspiring knowledge. Balkrishna. Thank you, Dr. Archana Pandey and Dr. Gyan Prakash. और ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो गया। और कुछ जब भी इलाहाबाद की बात आती है तो एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है, यादें आ जाती हैं, बचपन वहाँ गुजरा है, बहुत कुछ सीखा है। आज जो हूँ उसमें इलाहाबाद का एक बड़ा रोल है, उसमें मेरे जो मित्र हैं ज्ञान प्रकाश जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल। मेरा ये हमेशा मानना है, हम जो हैं वो खुद से नहीं होते, बल्कि जो हमारे चारों ओर होते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जीवन में आप किन लोगों से मिल रहे हैं, ये आपका भाग्य निर्धारित करता है, क्योंकि ये हम चुन नहीं पाते। कई बार चुन लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग ठीक नहीं है, तो लेकिन जो आपका परिवार है वो तो जस्ट आपको मिल जाता है। आपका जो फैमिली है वो तो आपको मिल जाती है, उसमें कोई आप जस्ट उसको, वो एक एक्सीडेंट है। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो बनते हैं वो ये सराउंडिंग है, ये जो फ्रेंड है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वो जो फ्रेंड सर्किल है, और आप लोगों को भी ये सलाह दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पीपल हु आर गुड अराउंड यू. One wrong person can derail your journey in life, even if it comes by chance or even by choice. So that is one thing, and in this sense I feel ki I am extremely fortunate in life so far. I don't know about future. I have been blessed and surrounded by good people and great people around me. When I say good people, I don't mean successful people. I mean people who have good values. लोग कहते हैं कि काम करो उनके साथ जिनके साथ लाइक माइंडेड लोग हों। मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करूँगा। लाइक माइंडेड नहीं, बल्कि लाइक वैल्यूज़ के साथ काम करना चाहिए। अनलाइक माइंडेड हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी थिंकिंग इनरिच होती है, आप ज़्यादा सोचते हैं, आप अलग तरह से सोचते हैं, आप अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग मिलते हैं, तो वो अच्छा होता है अगर हमसे अलग तरह के सोचने वाले लोग मिलें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या वो वैल्यूज़ मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज़ लाइक नॉट टू हर्ट अदर्स। आई थिंक ये अगर कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं तो उसमें हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता। कई बार दिल्ली में तो आपकी कार में एक छोटे से खरोच भी लग गई तो पता चला आपका वो बस ख़त्म हो गया। आप उस दिन यू नेवर नो, वो आपके हाथ में होता है। लेकिन जहाँ तक हो सके वो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान। दूसरी चीज़, जब इलाहाबाद की बात आती है तो मुझे संगम ध्यान आता है। बचपन से पढ़ते आए गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती तो ढूंढते नहीं मिलती ना वहाँ पे। तो जब ज्ञान प्रकाश ने बुलाया तो मैंने कहा चलो सरस्वती में डुबकी लगाते हैं। सरस्वती तो आप लोग हैं, सरस्वती तो ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो ज्ञान की नदी बहती है। वो गंगा यमुना के साथ दिखे नहीं, लेकिन है तो इलाहाबाद में। न जाने कितना कंट्रीब्यूशन है, न जाने कितना योगदान है उस शहर का और उस यूनिवर्सिटी का, जिसके आप लोग भी मेंबर हैं और मैं भी बहुत प्राउडली उसका मेंबर रहा हूँ। मैं इंसिडेंटली उस समय था 1985 वगैरह के अराउंड, जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे थे। तो उस समय वहाँ पर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी गांधीयन प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा। तो उनसे ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो दीवार होती है ना यूनिवर्सिटी और सोसाइटी के बीच, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इसको तोड़ देना चाहिए। अगर सोसाइटी, ये यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए काम ना करे, सोसाइटी के इश्यूज एड्रेस ना करे, ये बैरियर क्यों है? एक्चुअली इस बैरियर को हमें घटाना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो उन्होंने कहीं, मैं आज भी उनको कोट करता हूँ और बार बार कोट करता रहता हूँ। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है वो भी शेयर करूंगा।
और उसके 2 पार्ट होंगे। पहले वो बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बारे में जानने से कोई वैल्यू एडिशन आपके मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उतना मिलेगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं प्रॉब्ली वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होगा और उसको भी जानने की ज़रूरत है। तो मैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से बहुत प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, वो बहुत लिमिटेड यूज़ करता हूँ। टेक्नोलॉजी में काम तो करता हूँ, बट टेक्नोलॉजी से बहुत बचता हूँ, डरता हूँ और कम ही यूज़ करता हूँ। तो वो भी एक है, बट दैट्स हाउ इट। मैं एक प्रेजेंट नाउ लेट मी सी अलाउ टू शेयर स्क्रीन। ओके, कल अपने बेटे को बुलाया का बेटा बता दो कैसे गूगल वगैरह करते हो, मुझे थोड़ा यस। तो कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ, हम लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो ये जो आज का प्रेजेंटेशन है, ये किसी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, किसी गंतव्य के बारे में नहीं है, बल्कि एक यात्रा के बारे में है। तो यात्रा में बहुत पड़ाव आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी आई मीन कोई भी है, जिंदगी भी एक जर्नी होती है, हर यात्रा होती है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हम डेस्टिनेशन के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये डेस्टिनेशन तय कौन करता है? हम खुद तय करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे तय करते हैं। लेकिन जब हम किसी गोल के साथ, किसी डेस्टिनेशन के साथ अगर टू मच ओवरवेल्म्ड हो जाए, इफ यू गेट टू मच ऑब्सेस्ड, तो वो मिस आउट द प्लेजर्स ऑफ द जर्नी। इधर उधर भी देखने की जरूरत है, अगल बगल भी देखने की जरूरत है, और कई बार जो हमारे गोल होते हैं उनको रीडिफाइन करने की भी जरूरत होती है, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ें, जैसे जैसे हम प्रोसीड करें। तो ये एक जो है एक ये जर्नी और डेस्टिनेशन, ये एक डिबेट चलती रहती है। मैं मोर जर्नी का पर्सन हूँ, डेस्टिनेशन का नहीं। मैं प्रोबली उतना बंधना नहीं पसंद करता। और दूसरी चीज ये कि माई लाइफ वॉज not as planned, it just kept on happening and just I keep on going with the flow. अब मैं जिस मैगजीन में काम करता हूँ, ज्ञान ने बताया उसके बारे में, मैं उसकी कहानी और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन किसी भी मैगजीन का काम क्या होता है? तो मुझे लगता है कि ये जो भी मैगजीन है, और ये काम यूनिवर्सिटीज का भी होता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी होता है, दैट इज टू चेंज माइंडसेट। हम जिस तरह से सोच रहे हैं, क्या हम उसे बदल सकते हैं? जब मैं ये मैगजीन शुरू कर रहा था 2005 में, तो मेरा बेटा उस समय 4-5 साल का था और वो गिनती सीख रहा था। तो उसने एक दिन पूछा कि पापा, हम 11 क्यों बोलते हैं? जैसे हम 21 बोलते हैं, 31 बोलते हैं, 41 बोलते हैं, हम 11 को क्यों 10-1 क्यों नहीं बोल सकते? मैंने कहा बेटा वो तो परफेक्ट है, आप चाहे 10-1 बोलिए चाहे 11 बोलिए, हमें वो बात तो वही रहती है। बट आपने इस उम्र में इस बात को सोचा तो मुझे अच्छा लगा। और तब से ये स्लाइड मेरे, जब भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कोऑर्डिनेट्स को, इस स्लाइड से ही करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली इन नंबर्स इट हैज ओनली लिमिटेड, वो 12, 13, 20 के बाद वो वोकेबलरी खत्म होती है, और 21 के बाद फिर उस पर बैंक करते हैं जो उन्होंने 20 तक सीखा है। हिंदी के साथ फॉर्चुनेटली या हर भाषा की अपने रिचनेस होती है, और वो कहते हैं, वो हैविंग सेड दैट, हिंदी 100 तक पहुंच जाती है। उनको 11-12 के लिए उसको 10-11, 100 के बाद हम 101 और उस पैटर्न पे पहुंचते हैं। हर भाषा की अपनी, फ्रेंच 60 के बाद शुरू हो जाती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या हम सोच रहे हैं? जो ज्ञान ने बोला कि सोचने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा, अगर मेरी अपनी कोई एक स्ट्रेंथ है, मैं कोई एकेडमिकली बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, स्लाइटली अबव एवरेज सा रहा हूँगा, बट एक ही चीज मुझे थी, मैं हमेशा सोचता था, सवाल उठाता था। कई बार समाज में सवाल उठाने की उतनी इजाजत नहीं होती है, ठीक है, सवाल उठाए नहीं, सोच तो फिर भी सकते हैं। तो वो मुझे सोचने से कभी मैंने अपने को रोका नहीं, और सोचता रहा, और आज भी सोचता ही रहता हूँ। तो मैगजीन का जो मेन काम था, एक टेक्नोलॉजी मैगजीन थी, उसमें एक सेंस ऑफ एक्टिविज्म था। अब हम किस फील्ड में काम करते हैं, तो ये हम एक जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप में से बहुत लोग अवेयर होंगे ज्योग्राफी से, जहाँ मैप बनते हैं और नक्शे बन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। गूगल मैप आप सब यूज कर रहे हैं,
कहते हैं ये जीपीएस आप सब लोग यूज कर रहे हैं, इन सब का तो फाउंडेशन दिस मैप ही है। और ये जो मैप का जो ये कहानी है वो एक्चुअली इस देश में, ठीक है, कभी टोडरमल वगैरह साहब ने किया था, अकबर साहब ने काफ़ी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह पे काम किया था, लेकिन जो एक्चुअली इस देश को जो का नक्शा बना, जो एक मैप बना, वो एक बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसको अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था। 250 साल पुराना वो ऑर्गेनाइजेशन है। एक इंटरेस्टिंग बात थी हुई उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एक ऑथर थे, उन्होंने इंडिया मैप मेकिंग हिस्ट्री इन इंडिया पे एक स्टोरी बुक उसको डॉक्यूमेंट करना चाहा, और एंड ही एंडेड अप बुक राइटिंग ऑन इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो ये जो मैप है और जो इंपीरियलिज्म है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेस था। तो अंग्रेजों को जब इस देश को कैप्चर करना था तो उन्होंने इसको देश को समझा, इस देश के कोने कोने को समझा। उन्होंने ये देखा कि कहाँ कितने रिसोर्सेस हैं, कहाँ क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पर्पस उतना इस देश के लिए नहीं हो था जितना कि उनके अपने देश के लिए था, लेकिन इस देश को जानने की ये जो एक्टिविटी थी, ये इमेंस थी, मेहनत थी, पेनफुल थी और एडवेंचरस थी। बट वो हुआ। आज सर्वे ऑफ इंडिया देश का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और ये एक बहुत बड़ा काम। अगर हम किसी तो देश को अगर समझना है, देश को जानना है, तो देश के नक्शे को भी देखना होगा, उसको भी समझना होगा। और देश के अगर हम इंपीरियलिज्म के लिए किसी ने यूज किया तो डेवलपमेंट के लिए भी उसे ही यूज करना है। हम में से किसी के बहुत कम लोगों ने शायद इलाहाबाद का नक्शा आज से बहुत पहले प्रिंट आउट में देखा होगा। मैं जब था स्टूडेंट तो मुझे कभी इलाहाबाद का नक्शा नहीं देखा था मैंने, आज से 25 साल पहले जब मैं वहाँ रहता था, या 30 साल पहले जब मैं वहाँ था। तो लेकिन एक जस्ट मैप देखते ही हमें हमारा जो विजन है, हमारी जो समझ है वो देखते हैं। जब हम गूगल मैप का यूज करते हैं, अब तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये जो जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एवरीवेयर है, हम नोइंगली अननोइंगली यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपावरिंग है। एक अब जब हम गूगल मैप देखते हैं तो हमें पता है कितनी देर में पहुंचेंगे, किस जगह पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जो एक प्लानर है, जो एक डेवलपमेंट है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रहा है, उसे पता है कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, इंपावरिंग है, एक स्टूडेंट के लिए भी इंपावरिंग है, एक सिटीजन के लिए भी इंपावरिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक टूल है और ये एक बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन है। समहाउ मेरा कंफर्ट टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा नहीं रहता, ऑल्दो मेरा काम उसे प्रमोट करना है, मेरा मैंडेट उसे के बारे में अवेयरनेस करनी है। कई बार आई फाउंड कि इट्स वेरी इंस्लेविंग। वो हमें बांध के रख देती है, हमें गुलाम बना देती है और हम बस फंस जाते हैं और हम बहुत कुछ मिस करते हैं। तो एम्पावरमेंट अगर हुआ है तो इसके साथ इसके डेंजर्स भी एसोसिएटेड हैं और इसके रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। और टेक्नोलॉजी एक टूल होती है। कई बार अगर टायरेनिकल पर्पस के लिए चाहें तो फिर गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है, हमारी लाइफ में काफ़ी इंट्रूसिव हो सकती हैं। हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता चल जाता है। तो चक्कर ये है कि अगर मैंने कहते हैं बच्चों ने कहीं पे एक छोटा सा पेमेंट किया और मैं अगर उससे अवेयर हूँ तो वो हर बार कंफर्टेबल नहीं होंगे कि पापा को पता चले कि मैंने आइसक्रीम खाई है और गूगल पे से मैंने पे किया है। तो they need their own privacy, they need their space. Sometimes it gets encroached and badly encroached. अब दुनिया तो बदली है, बहुत सालों से बदली है, बदलती ही रहेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने इस बदलने की गति को एक एक्सेलरेट किया, एक त्वरित वो बहुत तेजी से बदला। आग आई, आग का जब हुआ तो उससे दुनिया बदली। पहिया चला तो चलता ही गया, आज भी हम पहिए पे बहुत कुछ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ऐसा वो रहा है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है और मुझे लगता है कि इसने बहुत बड़ा वो है। इसके बाद जब इस सेंचुरी में आएंगे तो हम लास्ट सेंचुरी में देखेंगे तो रेडियो, टीवी, फोन्स, फिर मोबाइल फोन्स। आई मीन कि 25-30 साल पहले जब मैंने पहली बार मोबाइल फोन देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि बिना किसी तार के और होकर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया, फिर स्मार्टफोन आया। जीएनएसएस टेक्नोलॉजी वही है, जीपीएस और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इन चीज़ों की। एक जो बहुत और ये सारे पैरेलल जो डेवलपमेंट है कन्वर्ज हुए हैं। इसमें जो बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट्स हुए हैं
कुछ थोड़ा सा मैं और देखना चाहूँगा। ये 2005 से 2007 तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया इस दुनिया को बदलने के लिए, जिसको मैं बोलूँगा कि गूगल अर्थ ऐसा था जब पहली बार एक डिजिटल मैप लेआउट हुआ और हम एक्साइटमेंट हुए सैटेलाइट्स को देख करके कि अपना घर ढूंढ सकते हैं क्या। मेरा कहते हैं जॉर्ज टाउन कहाँ पे है इलाहाबाद में, मेरा आनंद भवन कहाँ पर है, संगम कहाँ है, कैसा दिखता है। तो ये हमें एक एक्साइटमेंट आया लोगों में। पहले हम कहते थे कि जब हम प्रेजेंटेशन देते थे शुरू में 2004 वगैरह में 5 में जब कोऑर्डिनेट शुरू किया, तो हम यही बोलते थे कि इस देश में एक ही समस्या है, मैप मैप मैप। मैप के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है, मैप से सेंसिटाइज नहीं है, मैप लिटरेसी की जरूरत है। बट इस पूरे के पूरे चीज़ों को चेंज कर दिया गूगल अर्थ ने। इसका क्रेडिट सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, किसी भी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाता। वो तो उस तरह से पॉपुलराइज नहीं कर पाए इस कॉन्सेप्ट को, एक नोशन को, बट ये गूगल अर्थ ने एक कहानी ही बदल दी। सो दूसरा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये बेसिकली जो सोशल मीडिया है, इसने हमारे सोचने समझने के ढंग को ही चेंज कर दिया है। आज हमारा कहते हैं मतलब हाथ में अगर मोबाइल ना हो तो लगता है कुछ खाली हो गया, अगर 15 मिनट मोबाइल नहीं देखें तो अजीब सी बेचैनी होने लगती। ये पैटर्न तो एक था, लेकिन एक जो बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट हुआ है, आई एम नॉट श्योर इट इज गुड और बैड, बट एज ऑफ नाउ आई एम वेरी वेरी अप्रहेंसिव अबाउट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। दिस इज चैट जीपीटी और ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है, इसकी बात मुझे याद है हम जब क्लास ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी मैंने एक आध पेपर देखे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सुना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या है, बस नाम से ही कुछ लगता था कि कुछ होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बूम मिला, जो अभी ये बढ़ा और एक बूस्ट हुआ, अचानक से स्पल्ट हुआ ये बहुत तेजी से, अनकंट्रोलेबल, ये इसका जो मेन था, वो अभी तक क्यों नहीं ग्रो कर रहा था, अचानक क्यों ग्रो किया, इसका जो मेन रीजन था वो था डेटा। डेटा एक मेन इंग्रेडिएंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअली वो करने के लिए, एक बेस चाहिए था उसको वो करने के लिए। लेकिन वो जब डेटा का ह्यूज जनरेशन शुरू हुआ, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने एक बैंक में ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन बहुत सारे डेटा जनरेट कर देता है कि किस एटीएम से निकाला, किस बैंक से निकाला, आपकी अपनी लोकेशन क्या है, कितना निकाला। तो बैंक के पास बहुत सारे डेटा, तो हर सेकेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बूस्ट मिला और फिर आया ये जो चैट जीपीटी, ये जो साल 2 साल की ये कहानी है, ये मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रही है, क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी थी वो आपको फिजिकली एड पहुंचा रही थी, आपको फैसिलिटेट कर रही थी डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ऑल। लेकिन इस पर क्या हुआ है, इस टेक्नोलॉजी ने आपके कोग्निटिव डोमेन पे इंक्रोच किया है। अब सोचने का भी काम ये टेक्नोलॉजी कर रही है। ये काफ़ी वरीसम डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ तो एक अजीब सी सिचुएशन आ रही है। एंड आई थिंक वी हैव रीजंस टू think about it, to ponder about it, and actually to worry about it. So I'll come again on this कि किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली भी, बहुतों के लिए एड भी है, बट बहुतों का काम जो हम पहले कर सकते थे या लोगों की जरूरत होती थी, आज तो हम बस चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो एक काफी एक्साइटिंग टाइम्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोनॉमस व्हीकल्स इज गोइंग टू बी अ रियलिटी वेरी सून। इट हैज बीन अ रियलिटी इन दिस क्या कहते हैं मैनी ऑफ द कंट्रीज। काफी सारे सिटीज, सिंगापुर हुए, अमेरिका हुए, वो ड्राइवरलेस कारें वहां चलनी शुरू हो गई हैं। ऑफ कोर्स कहते हैं गवर्नमेंट शुड रजिस्ट, और गवर्नमेंट यहाँ पे तो इंडिया में डेफिनेटली रजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों की जॉब इस ड्राइविंग पे डिपेंड करती है। तो बट एटलीस्ट ये है और ये हो रहा है। यूएवी, ये जो हमारे ड्रोन वगैरह हैं, और ये कहते हैं ये सारे ड्रोन वगैरह ने जो है आजकल वो एयर टैक्सी के रूप में फॉर्म हो रहे हैं, वो डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। तो ऑफ कोर्स ड्रोन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली उस जगह जाने के लिए जो कि
मान लिया रेडियो एक्टिव अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे आपको कोई काम करना है, इनएक्सेसिबल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, कहीं पे डिजास्टर हो गया, लोगों को लिफ्ट करना है, तो पॉजिटिव चीजें हैं ही, लेकिन एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है, चेंजेस बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहे हैं। हमारा जो एडेप्टेशन है एक बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए, मुझे लगता है कि वो चैलेंजिंग है। इसी बात पे, ये एडेप्टेशन की बात पे मुझे याद आया, जब मैं आप लोग की एज का था, आई मीन 18, तो बचपन से ही पढ़ने का शौक था, तो मैंने उस समय किताब पढ़ी थी जब मैं ग्रेजुएशन में था 1986-87 में। डेसमंड मॉरिस एक यूके के वो थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कई बुक लिखी थी, नेकेड एप एंड ह्यूमन जू। मैंने ह्यूमन जू पढ़ी थी। तो वो उनका कहना था कि जो अर्बनाइजेशन है, वो जो प्रोसेस है, वो इतनी फास्ट है कि हम इस चेंजेस के लिए एक बायोलॉजिकल एंटिटी की तरह अडेप्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए कई बार हमारे बिहेवियर में एब्रेशंस आते हैं। उन्होंने अर्बन सिटी में एक ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया एक जू के एनिमल को, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। उसको एक कॉम्प्लिकेशन, जैसे उसके बिहेवियर में एब्रेशंस आते हैं, वैसे हमारे बिहेवियर में भी आते हैं। इस तरह की चीज़ों उन्होंने हाईलाइट। मुझे लगता है कि अगर वो बुक वो आज के समय में लिखते तो शायद वो क्या कर रहे होते कि एक ही फैमिली में 4 लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, और किसी अननोन, मतलब जिनसे वो वर्चुअल बात कर सकते हैं उनसे कर रहे हैं, लेकिन जिससे, तो एक कहानी है। ये टेक्नोलॉजी आज हमें ओवरवेलम कर रही है, सोसाइटी के ईच एंड एस्पेक्ट में जा चुकी है, और इसमें कहीं हम भी हैं। एक सुप्रीमेसी बैटल, आई थिंक वी आर लूजिंग इट। ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड, ये सिर्फ एंड करके नहीं, ये हायरार्की भी शो कर रही है। जब मैं इसको ऑर्डर दे रहा था कि सोसाइटी ऊपर लिखूं या टेक्नोलॉजी ऊपर लिखूं या हम अपने को ऊपर लिखे, मुझे लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी है वो ड्राइव कर रही है पूरी सोसाइटी को, और हम सिर्फ एक डेटा वो बन चुके हैं, एक नंबर बन चुके हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ रह नहीं गए हैं। दुनिया में 4-5 कंपनियां लाइक गूगल, अमेजॉन और ये जो भी हैं 7-8 ये 7 कंपनियां 7 बिलियन लोगों का फेट डिसाइड कर रही हैं। एंड तो थोड़ी बहुत बात थी, मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी बातें कर लूं। अब वो बात करता हूँ कोऑर्डिनेट्स की कहानी। और हम ज्ञान ने वहां तक बताया कि हमने साथ किया, कहते हैं क्लास 12 तक हम साथ थे, फिर हम ग्रेजुएशन करने लगे। तो ग्रेजुएशन में जैसे सारे बच्चे करते हैं, हम भी करते गए। उतना सोच नहीं पाते थे कि आगे क्या करना है। 3-4 चीजें हमें पता होती थी। आप सिविल सर्विस हो सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पीओ बन सकते हैं बैंक में, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोबेबली लॉयर बन सकते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे जो था शायद इससे भी लिमिटेड सोच थी, मैं वो भी नहीं सोच पाया, और बस ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, मैथ किया, और उसके बाद मास्टर्स करना है। मन मेरा फिजिक्स का था, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समहाउ जियोलॉजी डिपार्टमेंट एक नया खुला हुआ था, वहाँ पे एडमिशन हुआ, इंटरव्यू निकला, कुछ एग्जाम वगैरह हुआ, पता नहीं क्या किया। छोटा सा डिपार्टमेंट, 8-10 बच्चों लेते थे वो हर साल। वहाँ पे एडमिशन हो गया, और वहाँ से मेरी दिशा बदली। मास्टर्स हो गया 2 साल में, फिर क्या? ये क्वेश्चन आप बार बार फेस करेंगे अपनी लाइफ में भी, और हमने भी फेस किया था। मेरे पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई बार सेशन डिले होना एक बहुत एक प्रॉब्लम होती थी। कई बच्चों के कई साल वो मुश्किल में बिताते। थैंकफुली हमारा जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट था वो इससे वो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर जुलाई में नहीं, उन्होंने अक्टूबर वगैरह में रिजल्ट निकाला, लेकिन बाई दैट टाइम 1 साल तो आपका चला गया। मेरे उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे, कोई कहीं एडमिशन ले रहा है, कोई कहीं ले रहा है। समहाउ मेरा मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, और मेरा उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी चला गया। आई मीन 91 में मैंने मास्टर्स किया, 92 तक मैं कुछ समझ ही नहीं पाया क्या कर रहा हूँ, और अचानक एक दिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जनवरी 93 में मैं दिल्ली चला आया। जब हम कहीं शहर छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो पहले, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, पहले एडमिशन होता है, उसके बाद
आप कहीं जाते हैं। मेरी कहानी थोड़ा अलग थी। मैंने पहले दिल्ली आया और उसके बाद ये सोचा कि एडमिशन कहाँ लूँ, कैसा लूँ। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जेएनयू में थे, और तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो दिया। वहीं पे पास में एक छोटा सा एक अर्बन विलेज जैसी जगह थी, वहाँ पे मैं घर पे किराए पे रहा। मेरे पेरेंट्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड के थे, तो इतना भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो जो भी पैसे आते थे थोड़े बहुत 1000-2000 रुपए उसमें वो किराए पे चले जाते थे। तो ये उसमें फिर एप्लीकेशन के भी फॉर्म भरने हैं, ये भी भरने हैं। पॉइंट ये सबकी कहानी है, बहुतों की कहानी है। पॉइंट ये है, ये जो इनर्शिया था, जो मेरे 2 साल का जो मेरी लाइफ में एक स्टैग्नेशन आया था, मेरा घर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। जो मैं शुरू में भी बोल रहा है कि आप वो होते हैं जो मेरे पेरेंट्स ने कभी कोई शिकायत नहीं की, एक भी बार नहीं कहा कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, ये शब्द तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे कभी वो नहीं था। और जब मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाता हूँ, ये भी नहीं पूछा क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं, वहां जाके देखो क्या कर सकते हो। हाँ जब नहीं, अगर कभी लगेगा लौटना है तो लौट आना। लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, जॉब करना, ये करना, नथिंग। ऐसा बहुत रिच नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ बहुत संतोषी काइंड ऑफ लोग रहे हैं, तो ज्यादा कुछ जिंदगी में चाहिए नहीं था, मुझे भी नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए रहता। लेकिन वो जो वो दिल्ली की जो वो ट्रेन थी, जो मैं आया, वो एक मैंने प्रोबेबली एक अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट किया और मैंने वो इनर्शिया ब्रेक कर दिया। और ये ब्रेकिंग इनर्शिया, आप बच्चे जानते हैं, ये अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, और वो फोर्स पता नहीं कहाँ से आई और जाए। यहाँ पे 4-6 में यहाँ आने के बाद मैंने फॉर्म भरा और समहाउ मेरा एडमिशन जेएनयू में हुआ। अब एक चीज है जो आप सबको समझनी होगी, जब भी हम लाइफ में करते हैं, एक टाइम आपको लाइफ में ऐसा होगा जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक एनर्जी चाहिए होगी। वो अगर कुछ लोग इंटर में कर लेते हैं तो वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं। मैंने तो नहीं किया था, तो मैं तो नहीं गया। उस समय तो यही होता था कि आईआईटी चले जाओ, रुड़की यूनिवर्सिटी चले जाओ, ये जो इस तरह की चीजें, मैंने तो नहीं किया, मैंने वो एनर्जी नहीं लगाई। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया तो भी वो एनर्जी नहीं लगाई। और एनर्जी के साथ समस्या ये है कि यू हैव टू हैव अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट के अराउंड कर रहा है, अगर वो क्वांटम एनर्जी नहीं मिलेगी वो हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी से काम नहीं करता। तो जो भी आपकी एनर्जी है, वो अगर उसमें क्वांटम नहीं है, एक पूरा वो नहीं आया, तब तक आप ऑर्बिट नहीं चेंज कर सकते। मुझे लगता है कि मेरा वो फेज था जो स्ट्रगल था 4-6 महीने का, और उसमें एडमिशन हुआ जेएनयू में। हेलो, तो वो एडमिशन हुआ, उससे मेरी लाइफ को काफी काफी चेंज, और ये एनर्जी ऑफ यस, ये मेरी मेन साइड है। हेलो, क्यों दीदी थर्ड ईयर के बच्चे आज आए थे, थर्ड सेम हेलो, वाले आए थे, हमको खिलाफ हो जाए। हेलो, आप बात करिए, आप शुरू करिए। वो अच्छा, किसी ने आउट काउंट कर लिया था। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये जो है, ये मेरा ये है, क्या कहते हैं, मोटिवेशन एंड मोमेंटम। जेएनयू ने मुझे एक ब्रीथिंग स्पेस दिया। अचानक मुझे एक अलग दुनिया दिखी, एक अलग दुनिया दिखी। मेरे सोचने का, मेरा समझने का, मेरा नज़रिया बदला। मैंने पूरा देश देखा, पूरे देश के लोग थे। मैंने वहाँ पे उन लोगों को देखा जो बहुत लिमिटेड उससे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने जेएनयू में सीखा, एक मेरा जो एक हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप शायद बेटर हैं, और सोशल साइंस के बच्चे वीकर होते हैं इसलिए वो सोशल साइंस पढ़ते हैं, इस तरह के नोशन समहाउ कहीं आ जाते हैं। तो ये जो एकेडमिक एरोगेंस आ जाता है कई बार साइंस के बच्चों को, उसको मैंने टूटते हुए देखा, वो मेरा मेल्ट हुआ। मैंने देखा सोशल साइंस एक की जो फाइनेस है, जो उसके एक्सेलेंस है, जो उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज है, उन बच्चों में जो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत ब्राइट हैं, बहुत सीखे हैं। और सिंस वो
टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं था, वो बेसिकली सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट था। तो मुझे उनकी समझ और उनके उससे, मैंने कहने को तो मैं एनवायरमेंटल साइंस कर रहा था, बट मैं एवरीडे सोशल साइंस सीखता था उन बच्चों से जो हमारे मेस में बैठते थे, जो हमारे हॉस्टल में रहते थे और जो हमारे कैंपस में रहते थे, जो वहाँ डिबेट होती थी, जो डिस्कशंस होते थे। तो सोचने का एक नजरिया बदला। तो क्या जेएनयू, बट कहानी तो ऐसे नहीं होती, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जेएनयू आया और फिर एमफिल भी खत्म हो गया। अब क्या करूं? अल्टीमेटली तो आप तो उस रुमानियत में चले गए थे, एक लगा कि जिंदगी में एक बहुत फ्रीडम थी, कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी डिस्कस कर सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन सरवाइव भी तो करना है। जेएनयू तो एक फ्रेंडली था, एक आइसोलेटेड प्लेस था, सेफ प्लेस था, बट दिल्ली तो हॉस्टाइल थे। दिल्ली में आप कैसे सरवाइव करेंगे? वो एक चैलेंज था। तो फिर ढूंढना शुरू की गई नौकरियां। अब इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ा था, टेक्नोलॉजी में तो पढ़ा नहीं था कि कोई इंडस्ट्री में चला जाऊं। अचानक रियलाइज किया, कर तो लिया, उसने मुझे वापस रिवाइव तो किया उस स्टैग्नेशन से जो मेरा मास्टर्स के बाद और प्री एमफिल के बाद हुआ, मुझे नई ऊर्जा तो दी। लेकिन अब क्या? और फिर मैंने भटकना शुरू किया। एक ऑर्गेनाइजेशन 3,000 रुपए, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 6,000 रुपए, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं 96 और उसकी बात कर रहा हूँ, 96 वगैरह के लिए। बट बस भटक रहा था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। जहां भी जा रहा था, कहीं ना मुझे वो वर्क कल्चर समझ में आ रहा था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, अगर उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक फोरम नहीं मिलता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन था। मैंने यहाँ पे मास और वेलोसिटी वर्ड को, ऑफ कोर्स मोमेंटम है तो मास और वेलोसिटी की ही बात होगी, लेकिन वेलोसिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। यहाँ पे अगर दिशा ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दशा तो है, और इसमें एक भी और दूसरी भी समस्या ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन जब होता है, एक भी फैक्टर 0 हो गया तो आपका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। थोड़ा भी रहे, एक ही रहे, और एक ही एक रहे तो भी समस्या होती है, वो एक ही एक रह जाता है। तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट उसके बाद एक्चुअली शुरू करता है। तो ये जो चीज है, मैं स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग था, मोमेंटम बिल्कुल नहीं आ पा रहा था। वो स्ट्रगल चल रहा था। प्रॉब्ली जो क्रिटिकल मास है और ये जो राइट अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं मिल रही थी। समहाउ उसी सिचुएशन में एक मैरिज की भी बात हुई। मेरी सेटल नहीं था, जॉब में कुछ कर रहा था, बट पेरेंट्स को लगा जॉब होनी चाहिए, मुझे भी लगा ठीक है कुछ तो कर ही रहा हूँ। एक कंपनी थी पर पावर सेक्टर में काम कर रही थी, बाद में बंद भी हो गई। तो 10,000 रुपए दे रहे थे 1995 में, तो 98 में, एक्चुअली 98 में। तो पेरेंट्स को लगा कि बच्चा तो 10,000 रुपीज कमा रहा है। उस समय 10,000 रुपीज दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कम था, बट इट वाज नॉट बैड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलाहाबाद। तो पेरेंट्स को लगा कर देनी चाहिए शायद। कहीं बात हुई और चीजें ऐसी बढ़ी कि मैरिज की भी बात हो गई। इंसिडेंटली इंगेजमेंट के 1 महीने बाद मेरी वो जॉब चली गई। मैरिज के 2 महीने बाद मैरिज होनी है, इंगेजमेंट अक्टूबर में होती है, अक्टूबर एंडेड में मेरी जॉब जाती है, और दिसंबर में मैरिज शेड्यूल्ड है। मैंने अपने इन लॉज को फोन किया, मतलब वो वुड बी इन लॉज को दैट टाइम, कि भैया ये तो गड़बड़ हो चुका है, अभी भी इसके आगे बढ़ना है, आई थिंक आई एम रेडी टू विड्रॉ, बिकॉज जिस सिचुएशन में ये बात हुई थी वो सिचुएशन बदल चुकी है, सिनेरियो बदल सकती है। आई थिंक वी कैन यू हैव अ फ्री टर्म टू हैव अ रीलुक। उन लोगों ने काउंटर किया, उन्होंने कहा अगर ये शादी के बाद ये बात हुई होती तो क्या आप ये ऐसा कहते क्या हमसे? तो दे टुक एन ऑफेंस, बट एनीवे आई टुक, तो जस्ट वी प्रिसोडेड विद देम। बट उसी समय लाइफ में एक मेजर बदलाव आया। मेरी लाइफ में कुछ नए लोग एंटर किए। एक मेरी वाइफ की एंट्री हुई थ्रू मैरिज, और उसी समय मुझे एक जॉब ऑफर मिला यहाँ दिल्ली में, जो एक अलग डोमेन में काम करते थे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो रिमोट सेंसिंग, जियो स्पेशल साइंस और जियो स्पेशल सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन पे बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, व्हाई यू वांट टू कीप मी, बट आई वुड लाइक टू बिकॉज आई नीड अ जॉब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बट कोई बात नहीं, हमें वो आपका अप्रोच अच्छा लगा है, आपका सोचने का, ये सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सीख जाएंगे। उनकी मैगजीन थी, उन्होंने मुझे असिस्टेंट एडिटर की तरह लिखना, और समहाउ मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उस काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। सैलरी कम हुई,
10 से 7,000 पे आ गए, लेकिन फिर भी मुझे वो काम बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी हमें कोई पैकेज आता है, अपने बेटे को भी बोलते हैं, पैकेज को कभी सिर्फ फाइनेंशियल कंपोनेंट से नहीं जज करते, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। वो जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क एटमॉस्फेयर क्या है, आपके बॉसेस कैसे हैं, कितनी लर्निंग है। लर्निंग भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है अर्निंग के साथ साथ। ये चीज़ें हैं या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी से मैंने बहुत सीखा, 6 साल काम किया, फिर मुझे लगा ये तो सैचुरेशन हो गया, अब क्या करूं। ये तो हम अब नया कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और मैं भी शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरी शादी के बाद वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था, वहाँ पे मेरा एक और कोलीग होता था, उसने भी उसी ऑर्गेनाइजेशन को उसी समय ज्वाइन किया था। वो कॉमर्स ग्रेजुएट था, उसका टेम्परेंट मोर मार्केट ओरिएंटेड था। उसने क्या किया, हम दोनों में समहाउ, हम दोनों बहुत अलग तरह की पर्सनैलिटी थे। मैं मोर कहते हैं राइटिंग रीडिंग पर्सन, वो पर्सन एक हैप्पी पर्सन, कहते हैं लाइवली पर्सन, और था मैं बॉस उतना मैं बोरिंग सा पर्सन था। लेकिन हम दोनों में समहाउ एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और प्रोबब्ली वही बात है, वी वर नॉट लाइक माइंडेड बट वी वर लाइक वैल्यूज पीपल। हम दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, और हम दोनों को ये लगा कि शायद अगर हमें आगे बढ़ना है और हम और कंट्रीब्यूट इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकते, हम अपना क्यों ना शुरू करें। तो अब कैसे करें, क्या करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे तो है नहीं। हमने क्या किया, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रोथ किया था, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, बहुत कुछ दिया। सो वो उन्होंने किया। फिर हमने क्या कहते हैं, उसको हमने लेकिन हमने प्लंज लिया, हमने क्विट कर दी, एक वेल सेटल्ड जॉब को क्विट कर दिया, और हमने कोऑर्डिनेट्स लॉन्च किया विद नो मनी। हमारे पास घर में उस समय मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, तो मेरे पास फाइनेंशियल एक घर के बिल जमा होने होते थे, एक बच्चा स्कूल जाने लगा था, बट हमने डिसाइड किया लेट अस टेक अ प्लंज। हम दोनों ने वो रिस्क लिया, और समहाउ टाइम हमारे साथ था, हमारा रिसोर्स पैसा नहीं था, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन था उस डोमेन में, तो उस डोमेन में हमें एक आइडेंटिटी मिली थी, लोग हमें जानने लगे थे, और वो हमारा रिसोर्स था, वो हमारा जो मोटिवेशन था, हमारा जो कन्विक्शन था। कन्विक्शन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने उस टाइम जिया, और वो जो कहानी शुरू हुई कोऑर्डिनेट्स की, वो तब से चली, आज भी चल रही है। यू कैन डाउनलोड ईच एंड एवरी इशू फ्रीली एंड फ्रीली। अब ये एक सक्सेस की कहानी, अगर इसको सक्सेस बोलूं तो, लेकिन ये हर आदमी की सक्सेस अलग होती है। अब किसी को पर्सनल लाइफ में सक्सेस चाहिए, किसी को पब्लिक लाइफ में सक्सेस चाहिए, ये हाईली सब्जेक्टिव है, कोई यूनिवर्सल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके साथ आप वो कर। मुझे लगता है कि मेरे फादर बहुत सक्सेसफुल थे, क्योंकि उन्होंने 3 बच्चों को अच्छे से अपब्रिंग किया और 3 अच्छे सिटीजन्स दिए। मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल थे। मेरी अपनी कोशिशें रहती हैं, तो सबकी सक्सेस, सबकी कहानियां अलग हैं, कोई भी स्टोरी कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो जब लोगों के संघर्ष देखता हूँ, मुझे लगता है जो गार्ड मेरी सोसाइटी के गेट पे बैठता है, वो ईमानदारी से अगर वो जॉब करता है, मुझे लगता है वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन है। लेकिन आज की डेट में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी इररेलेवेंट है। आई विल सजेस्ट टू रीड दिस बुक, युवल नोआ हरारी, 21 लेसन्स फॉर, 3-4 साल पहले आई थी, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ते ही रहता हूँ। ये वंडरफुल बुक है। इन्होंने एक और बात बोली थी, ये बोली थी कि आज का इशू अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, बल्कि बीइंग इररेलेवेंट होने का है, क्योंकि आपके ज्यादातर काम मशीनें कर लेंगी। अब तो सोचने का भी काम मशीनें कर रही हैं, तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे, वो ज्यादा बड़ा रिस्क है। और ये मेरी लास्ट स्लाइड है, जो कि हु एल्स बट देन, नॉलेज तो ठीक है, बट ये इमेजिनेशन है, वो दुनिया बदल देती है। ठीक है, कभी कोपरनिकस साहब ने सवाल पूछा कि धरती नहीं, ये सूरज चक्कर नहीं लगाता, धरती चक्कर लगाती है, वो हिम्मत की बात थी। मैं तो नहीं कर पाता, मैं आज भी नहीं कर पाता अगर वो नॉलेज नहीं होती, लेकिन सवाल पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ और पूछता रहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू बालकृष्ण जी फॉर योर इंस्पायरिंग लेक्चर। नाउ अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना माइक को ऑन करे और सर से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई क्वेरी किसी बच्चे की, माइक ऑन करिए अपना। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था, तो नाउ इट्स टाइम टू आस्क द क्वेश्चन।
मैं आपको हाफ अ मिनट और देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरे एक ही सलाह होगी, हाँ, बताइए। वो बस यही है, कीप थिंकिंग। थिंकिंग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस सोचते रहिए, कुछ हो जाता है। नाउ कोई फैकल्टी मेंबर्स भी अगर इंटरेक्ट करना चाहें तो वो भी बात कर सकते हैं। बालकृष्ण जी बहुत वेरीड फील्ड के हैं, इन्होंने साइंस पढ़ी, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी और वर्क कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल उसमें फील्ड में। अभी आपने उनका स्ट्रगल सुना, और ये तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं वाइंड अप करूं लेक्चर। ठीक है, तो अब फॉर्मली बालकृष्ण जी को थैंक्स देने का समय है। तो हमको वोट ऑफ थैंक देने का प्रिविलेज है, तो इट्स माय प्रिविलेज टू गिव वोट ऑफ थैंक। So first of all, I want to thank our patron, Dr. Sushil Kumar Sinha ji, Chairman, CMP Degree College, for giving his blessing to this program. I'm also thankful to our principal, Professor Ajay Prakash Khare, Sir, President IISc, who always ready to help us whenever we require. I want to thank our guest speaker, Shri Balkrishna ji, who spoke so well and told about his problems and his struggle in life, that कभी पैसे नहीं थे, जो मिडिल क्लास के बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है कि ये डिसाइड करना कि इस पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो जो उन्होंने बात की लास्ट की स्लाइड दी कि इमेजिनेशन करना है, वही एक हमारा पालनहार है कि एक हमेशा सोचिए, एक हमेशा इनोवेटिव आइडियाज ले आइए और अपना कल्चर, अपना इनोवेटिव आइडियाज को कन्वर्ट करिए, और सिर्फ जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर भी बनिए। तो आई थिंक इससे बढ़िया लेक्चर क्या हो सकता है, जो इन्होंने साइंस के टर्मिनोलॉजी लेके भी समझाया, मास और वेलोसिटी सा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन को शो करती है कि सिर्फ मास रह के नहीं है, मैटर रख के नहीं, आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी आपका मोमेंटम आगे आएगा लाइफ में। तो हमें लगता है कि आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए, टैलेंट तो होना ही चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपको। अगर आप डिफरेंट फील्ड के भी हैं तो भी आप डिफरेंट फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस के फील्ड में है तो आप साइंस के ही फील्ड में रहें और काम कर सकते हैं। अगर आपका टैलेंट है, आपकी स्किल है, तो आप दूसरे फील्ड में भी जाके काम कर सकते हैं। पहली जॉब बताई उन्होंने, बहुत ही छोटे से शुरू किया। तो बच्चों के लिए भी ये है कि जब भी देखें तो सिर्फ पैकेज ना देखें, जैसे उन्होंने कहा, बालकृष्ण जी ने कहा कि कंपोनेंट ना देखें, जॉब प्रोफाइल भी देखें, जॉब सेटिस्फैक्शन भी देखें, अपना इंटरेस्ट भी देखें, प्रोस्पेक्टिव टर्म्स में देखें कि क्या कुछ हो सकता है। तो हमें लगता है कि इतना कुछ एक लेक्चर में बनाने के लिए बालकृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सारी बातें हमारे बच्चों को बताई। और आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर सरिता श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट IISc, प्रोफेसर अर्चना पांडे, कन्वीनर IISc, for their support in organizing this program. My sincere thanks to all my conveners, the faculty members of the different departments who have joined and make this lecture meaningful. All the non-teaching staff who are attached with this program, I am thankful to them also. Finally, last but not the least, research scholars, PG, UG students who have joined this lecture and make this lecture a meaningful lecture. And they have, I think they must have taken something away from this lecture. And thanks all whose name I have not able to take. And thank you all. Now I request Archana Pandey ma'am to just give permission to wind up this lecture, and finally thank Balkrishna ji again. Balkrishna ji. जी मिस्टर बालकृष्ण जी, आपने बहुत बहुत अच्छा लेक्चर दिया और हमारे बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल रहा। बहुत कुछ वो जरूर सीखेंगे इससे। वही नहीं, हम लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मुझे लगता है।
हाँ, तो आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। लेक्चर कम, ये एक तरह से टॉक जैसी आपने ज्यादा रखी, तो बहुत ही अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हम लोगों का ये ऑफर एक्सेप्ट किया और हम लोग के साथ इतना समय दिया और बताया हम लोगों को बहुत सारे सभी तरह की चीजों से आपने हम लोग को बताया, अपने बारे में भी और सोसाइटी के बारे में भी और टेक्नोलॉजी के लिए भी आपने बातें की। तो थैंक यू वेरी मच। आगे भी कभी मौका पड़ेगा तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे हम लोगों के कहने से, कभी और कभी ऑफलाइन भी सुनने का मौका मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग अपना प्रोग्राम अब पूर्ण कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज्ञान जी आप बस बिल्कुल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बालकृष्ण को ये शिकायत जरूर रहती है हमारी बातचीत से कभी कभी, कि जब भी कभी इलाहाबाद आता हूँ तो गंगा जमुना तो मिलती है, सरस्वती का लोप रहता है। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरस्वती दर्शन इनके कराए जाए। तो उम्मीद करेंगे कि सरस्वती इनको यहाँ दिखे। CMT डिग्री कॉलेज में भी कभी आइए तो आपका वेलकम है, आप विश्वविद्यालय में आइए तो वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण जी यही इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अभी भी इनका जो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर नहीं मदर हैं, मदर अभी भी यही रहती है। तो आप मोस्ट वेलकम, कभी भी इलाहाबाद आए तो CMT डिग्री कॉलेज आपका हमेशा वेलकम करने को तैयार है। और जहाँ तक सरस्वती की बात है, तो जो सरस्वती आती है वो आप ही लोग के माध्यम से, आप ही के थ्रू आती है। आप जैसे लोगों के ही माध्यम से सरस्वती का आगमन होता है। तो बिल्कुल वेलकम है आपका। जब कभी आप इलाहाबाद आए तो जरूर हमारे कॉलेज में भी आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज्ञान जी। आपने डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा लेक्चर अरेंज करवाया और ये इवेंट आपने करवाया, तो डॉक्टर ज्ञान आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू बालकृष्ण, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू। we'll talk later बालकृष्ण। अभी प्रोफेसर लिखवाया क्या है, डॉक्टर कौन लिखता है, कौन कर रहा है ये सब?